שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. اور جو ہمارے خداوند یسوع مسیح مانتے ہیں ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا کے کلام کی فرما برداری کرنی چاہیے. یہ نہیں جانا چاہیے کہ جی میں بیٹے کی تو سنوں گا پر میں شریعت کو نہیں مانوں گا. تو پھر اناجیل اربع میں کہیں بھی خداوند یسوع مسیح نے ایسا کچھ نہیں کہا جو خدا کی شریعت کے مخالف ہو. میں آج تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اور بیٹے کی سنو، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، لیکن بیٹا جو کچھ کہتا ہے اگر آپ بیٹے کی سنتے ہو تو پھر تو آپ کو خدا کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے. اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک بھائی ہے اس کی پوسٹ کا میں جواب دینا چاہتا ہوں بڑے ادب سے احترام سے، کیونکہ اس پوسٹ میں جو کچھ اس نے کہا ہے خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے. تو یہ ایک پوسٹ میرے پاس پہنچی کسی ریفرنس کے وسیلہ سے، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو اس پوسٹ کو پڑھ کر غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں ان کے لیے رہنمائی کے طور پر یہ ویڈیو بہترین سورس ثابت ہوگی. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مضمون کیا ہے، میں یہ پوسٹ آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں اور پوسٹ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کو آگے اس کا جواب بھی دیں گے. پوسٹ میں یہ لکھا ہے، خدا واحد نے خود آسمان سے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو، لہذا میں شریعت کو نہیں مانتا. جناب یہ فیس بک پہ کوئی صاحب ہیں جن کی یہ پوسٹ ہے، اور اس پوسٹ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور دوسری طرف خدا کی شریعت کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے. اچھا، اس میں جو دعویٰ فرمایا گیا ہے وہ بھی کلام مقدس کے مطابق وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو جو سمجھنے کا انداز ہے وہ درست نہیں ہے. تو میں یہ دعویٰ کلام مقدس میں سے پڑھے دیتا ہوں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 9، میں اس کے باب نمبر 9 کی 34ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 9 اور یہاں 34ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. جی، تو لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جب بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اس کی سنو. آمین. تو یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر پوسٹ بنائی گئی کہ خدا واحد نے خود آسمان سے یہ کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو، لہذا میں شریعت کو نہیں مانتا. حالانکہ اس حوالے میں بالکل ایسا نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے اس کی سنو، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ شریعت کو نہیں ماننا اور شریعت کو جو ہے وہ اب رد کر دیا جائے گا. تو یہ پوسٹ میں تضاد ہے، آیت کے ساتھ کھلواڑ ہے. خداوند یسوع مسیح کی سنو، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی سننی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں جس طرح سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اپنا انداز ہے سمجھنے کا.
तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे दोस्तों से, इन जैसे और कई दोस्त अहबाब जो ये समझते हैं कि हमें सिर्फ बेटे की सुननी चाहिए, तो शरीयत को नहीं मानना चाहिए, आप गलत फहमी में मुब्तला हैं। मैं आज तफसील के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, और बेटे की सुनो, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, लेकिन बेटा जो कुछ कहता है, अगर आप बेटे की सुनते हो तो फिर तो आपको खुदा की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। और अगर आप ये दावा फरमाते हो कि हम बेटे की सुनते हैं लेकिन शरीयत को नहीं मानते, तो फिर आप बेटे की भी नहीं सुनते, आपने इनकार कर दिया। क्योंकि जो बेटे का पैगाम है, अनाजिल अरबा में बेटे का जो पैगाम है वो खुदा की शरीयत की रोशनी में है। पहली बात तो ये समझने की है कि अनाजिल अरबा में कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो खुदा की शरीयत के मुखालिफ हो। तो बेटे की सुन लो, बेटे की अगर आप सुनोगे तो बेटा तो आपको खुदा बाप की शरीयत ही पढ़ाएगा। इसलिए वो लोग जो इस आयत पर ये बात समझते हैं कि हमने बेटे की सुननी है, तो फिर उनको खुदा की शरीयत भी माननी पड़ेगी, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह खुदा बाप की शरीयत को ही बयान करने आए थे, और खुदा बाप की शरीयत को ही उन्होंने बयान किया। तो बहुत से हवाला जात दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए मैं चंद एक हवाला जात आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि बेटा क्या कहता है। तो वो लोग जो बेटे की सुनना चाहते हैं, तो भाई वो बेटे की सुन ले। अब बेटा क्या कहता है, मुकद्दस मत्ती की अंजील और 5वां बाब आयत नंबर 17 से मैं पढ़ रहा हूं। अब सुनिए, जब खुदा बाप ने फरमाया है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, तो फिर सुनो, तो सुनिए बेटा क्या कहता है। लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शेषा तौरेत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि जो लोग बेटे की सुनने का दावा करते हैं, तो जरूर सुने कि बेटा क्या कहता है। बेटा ये फरमाता है कि ये ना समझो, तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये गलत है, ये समझ गलत है। ये ना समझो, बेटा खुदा की शरीयत की ही तालीम देने आया, तालीम पर अमल करने आया, उसे पूरा करने आया। पूरा करने का मतलब है मानने आया। और जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह मानते हैं, हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी मैं बेटे की तो सुनूंगा पर मैं शरीयत को नहीं मानूंगा। तो फिर आप अगर शरीयत को नहीं मानते तो आप बेटे को भी नहीं मानते, क्योंकि बेटा शरीयत की तालीम देता है। आयत नंबर 19 में मैं आगे पढ़ रहा हूं, लिखा है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। तो गौर करने की बात है जी, गौर करें बेटा क्या कहता है। खुदाए वाहिद ने फरमाया, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो क्यों नहीं सुनते आप? बेटा तो ये फरमा रहा है कि खुदा की शरीयत के छोटे से छोटे हुक्मों को भी आप तोड़ नहीं सकते, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। वो कायम है, खुदा की शरीयत कायम है। कब तक? टाइम ड्यूरेशन क्या बताई गई? जब तक आसमान और जमीन कायम है, तब तक खुदा की शरीयत कायम है। ये है बेटे का फरमान, सुनो बेटे की। क्यों नहीं सुनते आप? एक तरफ आप दावा करते हैं कि हम तो जी बेटे की सुनेंगे, दूसरी तरफ आप खुदा की शरीयत के साथ नफरत का इजहार करते हैं। ये दुरुस्त नहीं, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप दुरुस्त राह पर नहीं हैं, क्योंकि बेटा कभी भी खुदा बाप की शरीयत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। एक हवाला मैं आपके सामने और पढ़ने जा रहा हूं, मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 22वां बाब है। 22वें बाब की आयत नंबर 35 से 40 तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। देखिए क्या लिखा है, बेटा क्या कहता है। बेटे की सुनना है तो गौर से सुनिए, फिर खुदा की शरीयत पर अमल भी कीजिए। क्या लिखा है, मैं 34 से पढ़ देता हूं। और जब फरीसियों ने सुना
کہ उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, अरे उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, बेटे ने क्या फरमाया, गौर कीजिएगा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानंद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मददार है। आमीन जी। तो वो लोग जो दावा करते हैं जी, हाँ, खुदाई वाहिद ने फरमाया कि मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, लिहाजा मैं शरीयत को नहीं मानता, ये गलत है, क्योंकि प्यारा बेटा शरीयत की तालीम देता है। अगर आपने शरीयत नहीं माननी तो फिर जो बड़े हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किए, जिनको बड़ा हुक्म ठहराया, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और फरमाया दूसरा इसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। फिर ये दोनों हुक्म आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप शरीयत को नहीं मानते। फिर आप बेटे को भी छोड़े, आपको बेटा छोड़ना पड़ेगा, खुदा का बेटा छोड़ना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह की तालीमात को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह की तालीमात खुदा की शरीयत और अंबिया इकराम की तमाम सहीफों की रोशनी में है। न जाने आप क्यों खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अपने आप को दुरुस्त करें। अगर आप बेटे की ही सुनना चाहते हैं तो याद रखें, जो बेटे की सुनता है, बेटा अपनी तरफ से नहीं बोलता। यूहन्ना की अंजील 7वें बाब की 16वीं आयत में फरमाया है, बेटे ने, मेरी तालीम मेरी नहीं है बल्कि मेरे भेजने वाले की है। तो भेजने वाले की तालीम, भेजने वाला तो बाप है, तो फिर आपको तो शरीयत माननी पड़ेगी। अगर आपको यीशु के साथ रहना है, यीशु के फॉलोवर बनना है, तो फिर भाईजान आपको शरीयत माननी पड़ेगी। फिर बहनों और भाइयों, आप इस किस्म की पोस्टों पर तवज्जो ना दिया करें, क्योंकि आज लोगों को कुछ पता नहीं होता अपनी नफरत का इजहार किस तरह से खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ बस जो मुंह में आया वो बोल देते हैं, और जो मन में आया फेसबुक पे लिख देते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम ये देखते हैं कि जो बेटे की सुनता है वो खुदा की शरीयत पर अमल करता है। एक हवाला मैं आपके दोषे गुजार और करना चाहता हूं, मुकद्दस मत्ती की अंजील 7वां बाब आयत नंबर 12। देखिए क्या लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो तो लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। सुनिएगा, बेटे की तालीम क्या है? बेटे को सुनना है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बेटे की ही मानकर खुदा की शरीयत को मानता हूं, क्योंकि खुदा का बेटा ये फरमाता है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वही उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। तो बेटा तो तौरात की तालीम पर अमल करने की तालीम देता है, खुदा का बेटा तो तमाम अंबिया कराम के सहीफों को मानने की तालीम देता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस किस्म के लोगों की तालीम पर तवज्जो ना दें, जो आपको खुदा के कलाम से दूर ले जाना चाहते हैं, जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर तवज्जो ना दें जो खुदा की शरीयत के खिलाफ है, बल्कि खुदा के कलाम को देखें और बेटे की सुने। खुदा ने, बाप ने ये फरमाया है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी बात है। लेकिन आज लोग यीशु को तो मानते हैं, लेकिन यीशु की एक बात भी नहीं मानते। अपनी मन मर्जी की बातों को अपना दीन बनाकर फेसबुक पर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अपने मद्दाह बनाने के लिए, अपने व्यूज बनाने के लिए बस खुदा की शरीयत के खिलाफ लिख देते हैं। आज पॉपुलर होने का एक ही तरीका है कि खुदा की शरीयत के खिलाफ बोलो, पुराने अहदनामे के खिलाफ बातें करो, तो आप पॉपुलर हो जाओगे। लोग आपको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू लिख लिख कर शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप मसीह की तालीम पर अमल करेंगे, तो फिर सबसे पहले आपके घर ही के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। बेटे ने ये फरमाया है मत्ती की अंजील 10वें बाब में। इसलिए नफरतों से न डरें, सच्चाई का साथ दें, सच्चाई पर अमल करें और खुदा के कलाम के मुताबिक
यसु ने बेटे ने फरमाया है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। सो मकसद ये है कि बेटे की सुनो, और जब आप बेटे की सुनना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप खुदा की शरीयत पर अमल करने लगेंगे। आज जितने भी लोग खुदा की शरीयत के दुश्मन हैं, पुराने अहदनामे के दुश्मन हैं, वो बेटे के भी दुश्मन हैं। वो बेटे को नहीं मानते, वो बेटे की नहीं मानते, वो सिर्फ दिखावे के तौर पर यसु यसु करते हैं। ऐसे लोगों से खुदावंद यीशु मसीह साफ साफ फरमाएंगे, एनोमियास, बेशरा लोगों, मेरे सामने से दफा हो जाओ। मत्ती की इंजील 7वें बाब में ये लिखा हुआ है। सो बेशरा ना बने, खुदा की शरीयत के ताबेदार बने, फरमाबरदार बने, बेटे की तरह खुदा की शरीयत पर अमल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम मालूमाती और रूहानी तालीम पर मबनी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुदावंद आप सबको बेहतर दे। आमीन।